Hello and welcome to A Couple of Ride, guys. And today's video is all about Tiger 660 Sport by Triumph. And I was really excited to ride it a few days back. You guys also remember I made a video on it while Triumph was teasing on this bike a couple of months back. And I thought that it's gonna be the blockbuster bike for Triumph. I liked it so much, from the looks to the capacity and the overall structuring of the bike, that I thought it's gonna be the best bike Triumph will ever create. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. आगे चलते हैं. तो हाँ, I was really excited to ride this bike, and the feeler and everything was very overwhelming. You know, when you walk into a dealer like Triumph, it's just the whole overall scheme is quite overwhelming. It's a special feeling to walk into a Triumph showroom and ask for a ride. And so I did, and here are my observations on the bike, and I've divided them for easy purpose and easy explanation into various parts, and I shall discuss them as the parts come. So let's move forward. First and the foremost part is, does it look good? I think it's the best bike in the lineup, at least the Triumph lineup. And कुछ इस तरह की बाइक है कि आप पार्क करने के बाद उसे ज़रूर मुड़ के देखोगे. And that's the thing about these high performance sporty bikes, if I may call it that way, that you want to feel special about it. So the looks really make you feel special in this bike. The overall panel finish, the attachments and the parts coming together is immaculate. There are few niggles here there, but they really don't turn out to be an eyesore in any way. The twin headlamp is beautifully made. I really still like it. I think it's the best bike in the lineup of Triumph as of now. Daytona होती थी उससे पहले, पर ये I think is topping the chart. The fairing also, becomes slightly cool looking. It's not like overwhelmingly big. Next pointer है कि is it fast or does it feel fast? See, it has about 81 PS coming out of that 3-cylinder engine, and it seems slightly peppy, if I may put it that way. बट अगर आप बोलोगे कि ये डेटोना फास्ट है या स्ट्रीट 765 फास्ट है या Z900 फास्ट है, तो वैसा नहीं है. इट्स नॉट ओवरवेलमिंग, इट्स कंफर्टेबल, इट्स इन्वॉल्विंग, और ऐसा है कि आपको कहीं से ना अनकंफर्टेबल नहीं करेगी. तो एक इस तरह की बाइक है जो आप तेज़ चला सकते हो, स्लो भी चला सकते हो, और कंफर्टेबली लॉन्ग राइड्स इंजॉय कर सकते हो. सो एक स्पोर्ट टूरर का जो पूरा फैक्टर होता है, तो पूरा डायनामिक होता है, वो यही होता है कि आपको लॉन्ग रूट्स, लॉन्ग राइड्स में कंफर्टेबल रखे, और आपको विंड बफेटिंग कम दे एंड ऑल दैट. तो वो पूरा पैकेज इज़ वेरी कंफर्टेबल. इट्स नॉट स्पोर्टी, इफ़ आई मे से इट, बट हाँ, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड लगी मुझे इसकी. आई थिंक स्लाइटली मोर कंफर्टेबल देन द ट्राइडेंट. मोर ओवर बहुत तेज़ है ऐसी फीलिंग नहीं आती है, मे बी बिकॉज ऑफ द फेयरिंग इन द फ्रंट, एंड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो स्पीड्स पता नहीं लगते हैं 120 130 के, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. और लॉन्ग राइड्स में, आई एम सेइंग इट अगेन, लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है, क्योंकि इस तरह की बाइक्स ना आपको बहुत एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर लेती हैं, रादर देन निकिड्स दैट आई एम राइडिंग दीज डेज. Tiger 660 Sport can actually prevent you from a lot of wind coming in your face, and that is very less tiring on the long routes. और अब आ जाते हैं राइड क्वालिटी पे. तो राइड क्वालिटी इज़ वेरी सिमिलर टू द कैरेक्टर ऑफ दिस बाइक. बहुत स्पोर्टी नहीं है बट स्पोर्टी है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है बट कंफर्टेबल भी है, बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है बट पेपी भी है. तो इट्स समवेयर इन द मिडल. बहुत सारे चेक पॉइंट्स है जो ये कंप्लीट करती है बाइक, और उससे राइड क्वालिटी के बहुत सारे फैसेट्स निकल के आते हैं. हालांकि एक बात कहूँगा कि रियर ब्रेक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लगी मुझे, बिकॉज एवरी टाइम वी वर प्रेसिंग द रियर ब्रेक, पहले हल्का सा टायर स्किड करता है, देन द ABS गेट्स एक्टिव.
I don't know whether it was a problem with this bike, but both of us, you know, we two of us rode together this bike, and हम दोनों को ही ये फीलिंग आई कि एकदम से अगर सडन ब्रेक लेते तो ABS एक्टिवेट नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था या यूज टू होने वाली बात है, वो मुझे लगता है कि एक इशू लगा मुझे। सस्पेंशन की बात करें तो ऑन कॉर्नर्स बहुत ऐसी नी डाउन वाली प्लांटेड फीलिंग नहीं है, बट हाँ कॉर्नर अच्छा करेगी, स्टेडी करेगी, बट अगर आप इस बाइक के किसी भी लिमिट को टच करोगे तो वो कंफर्टेबल नहीं रहती है। सो फॉर एग्जांपल आप कॉर्नरिंग में लिमिट टच करोगे या ज़्यादा लेटाओगे तो या इट बिकम्स अ बिट ट्विची। स्पीड एक लिमिट तक अच्छी है, उसके बाद विंड बफेटिंग आनी शुरू हो जाती है। लो स्पीड्स में बफेटिंग इतनी नहीं है, हाई स्पीड्स में अगर आप फेयरिंग के ऊपर हैं, मैं 5'8" हूँ, अगर मेरे से ऊपर कोई है या 5'9" है, 5'10", 6 feet whatever, they will surely feel that buffeting। और वो जो फेयरिंग के बाद की जो बफेटिंग है वो मुझे अनोइंग लगती है, तो मुझे बहुत कंफर्ट फीलिंग नहीं लगता, तो मैं काफ़ी नीचे करके ही चला रहा था इस बाइक को। थोड़ा डक पोजीशन में था मैं, सो दैट द बफेटिंग डजंट टच मी मच। सस्पेंशन इज़ ऑल्सो अगेन यू नो सस्पेंशन फेल्ट लाइक थोड़ा बजट है, बट अगर इसकी लिमिट्स में इसको चलाया जाए तो ये बहुत कंफर्टेबली और बहुत इकोनॉमिकली और बहुत स्पोर्टीली आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकती है, वेदर इट इज़ टूरिंग, संडे राइड्स, योर कैफ़े रन और अ रैंडम ढाबा दैट यू स्टॉप एट, इट्स गोना यू नो मेक यू लुक गुड। तो एक छोटी सी बात है राइड क्वालिटी की ना, कि जब आप एक इस तरह की बाइक लेते हो जो थोड़ी लंबी है, तो इसको थोड़ा स्टर्डी बनाने के लिए ना सस्पेंशन थोड़ा हार्ड करना पड़ता है, अदरवाइज इट विल बी वेरी वॉलोवी ऑन द कॉर्नर। तो वो हार्ड सस्पेंशन अकेले नहीं आता है, वो थोड़ा सा हार्शनेस लेके आता है, बट थोड़ी स्पोर्टीनेस भी लाता है। अगर विंड प्रोटेक्शन के लिए आपको आगे विंड स्क्रीन लगी हुई है तो वो अकेले नहीं आती है, वो विंड बफेटिंग साथ लेके आएगी, थोड़ा प्रिवेंट करेगी, थोड़ा नहीं करेगी। तो किसी भी बाइक का या किसी भी फीचर का एक ना पहलू हमेशा डबल साइडेड होता है। अब आपके ऊपर है कि आपको वो साइड कौन सी अच्छी लगती है या बुरी लगती है, वो एक बैलेंस आपको नापना है। तो हाँ, मैं मतलब यही कहना चाहूँगा विद राइड क्वालिटी एज वेल कि हर चीज़ जो इस बाइक में है वो अपने दो पहलू लेके आ रही है। एक तरह से वो कंफर्ट भी लेके आ रही है और दूसरी तरफ से वो बफेटिंग भी लेके आ रही है। एक तरफ से वो हार्ड सस्पेंशन भी है, बट कॉर्नर्स में आपको थोड़ा सा प्लांटेड रखेगा। तो एक मिक्स बैग ऑफ फीलिंग्स होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। नेक्स्ट चीज़ आई वांट टू डिस्कस अबाउट इज़ द फिट एंड फिनिश ऑफ दिस बाइक। Fit and finish is immaculate, as I said. The panels of the headlight are very nicely finished. The tank is very nicely recessed into the seat. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी तरीके से immaculately बनाई गई हैं, और मुझे overall fit and finish barring the switch gears मुझे अच्छी ही लगी। So राइड करने के बाद एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन समझ में आया या माइंड में आया, वो ये था कि ये बाइक बनी किन लोगों के लिए, हु इज़ इट फॉर। तो मेरा मानना ये है कि इंटरनेशनली तो ये बाइक बिगिनर्स के लिए बनाई गई है, और बिगिनर राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, बिकॉज इट्स अ स्टेप अप बाइक। स्टेप अप बाइक क्या होती है वो अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे अलग से, बट एक स्टेप अप बाइक का कैरेक्टर है इसमें जो बिगिनर राइडर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, उनको बहुत चीज़ें सिखाएगा। बट इंडिया में थोड़ा स्कीम ऑफ थिंग्स चेंज हो जाता है। इंडिया में यू डू नॉट बाय बाइक्स लाइक दीज फॉर बिगिनर पर्पसेस। इट्स अ 10 लाख ब्रैकेट बाइक मोर और लेस। तो 10 लाख रुपए की बाइक ना आप इसलिए नहीं खरीदते कि आप इससे सिर्फ संडे राइड्स करोगे, या इट हैज़ अ लॉट ऑफ पर्पस, यू नो, यू वांट टू शो इट ऑफ एज वेल, यू वांट टू राइड इट फास्ट एज वेल, यू वांट टू कॉर्नर इट बेटर एज वेल, एंड यू ऑल्सो वांट अ टूर इफ यू आर अ टूरर इनसाइड। बट मोर और लेस 80% ऑफ द टाइम्स इट्स गोना डू कैफ़े रन्स, और कैफ़े रन्स में ना इंडिया वाला सीन सेट नहीं होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक बहुत एक्सपीरियंस्ड
राइडर्स को अपील करेगी जिन्होंने बहुत कुछ देख रखा है, बहुत कुछ चला रखा है, एंड नाउ दे वांट टू सेटल इन फॉर अ बाइक जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करती है। थोड़ा राइड फास्ट भी करती है, थोड़ा कंफर्ट भी है, थोड़ा कॉर्नरिंग एबिलिटी भी है, और टूरिंग पर्पसेस के लिए भी अच्छी है, और कैफे रन्स तो करेगी ही करेगी। उससे भी ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दैट इस बाइक का मेंटेनेंस ट्रायम्फ ने ओवरऑल लो करा है, तो उसके कंजम्पशन पार्ट्स वगैरह थोड़े से लो कॉस्ट हैं। सो एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है, सर्विस इंटरवल ज़्यादा है तो एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है उस एक्सपीरियंस राइडर के लिए जिसको बहुत सारा टाइम अपनी बाइक को मेंटेन करने के लिए नहीं लगाना है, यू नो, बिकॉज दे वांट अ बाइक विच इज़ लेस हैसलसम टू देम। तो बैठे और चले गए, बैठे और टूर कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ना एक डिफाइंड एक्सपीरियंस बंदा जो इसकी पावर से, इसकी लुक से, इसके सस्पेंशन से संतुष्ट है। संतुष्ट मतलब satisfied in a way that that he's okay with not speeding as fast as a 765R or a Daytona in the week, you know. तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जिस बंदे की है उसको ये बाइक अपील करेगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रेलेवेंट भी रहेगी। एल्स ट्रायम्फ का पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया। ट्रायम्फ का पर्सपेक्टिव इस बाइक को बनाने के लिए है कि यू नो गो इनटू अ नेक्स्ट रेंज ऑफ बाइक और नेक्स्ट रेंज ऑफ पावर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आया वो था कि किसके लिए ये बाइक नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो स्पीड डीमंस हैं, जो स्पोर्टी राइड करते हैं, जो हमेशा संडे को भगाने के मूड में है या ट्रिप पे है तो भगाने के मूड में है। तो ये रॉसीज़ के लिए नहीं है या संडे ब्रॉलर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इवेंचुअली जिस प्राइस ब्रैकेट पे ये है उस प्राइस ब्रैकेट पे बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जो इससे फास्ट हैं, इससे ज़्यादा स्टेबल हैं, बट वो एक पहलू आपको दिखाती हैं राइडिंग का जो स्पोर्टी साइड ऑफ थिंग्स है, वेदर इट इज़ Z900 और वेदर इट इज़ the 765 or any other bike in that range, the 10 lakh rupee bracket that I'm talking about, वो एक पहलू दिखाएंगे। ये मल्टीपल पहलू आपको दिखा के चलती है, इसीलिए वो एक सिंगल डायमेंशनल बंदे के लिए मेरे ख्याल से ये बाइक अपील नहीं करेगी। लास्ट थिंग इज़ माई वर्डिक्ट। देखो मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग रोड पे ज़्यादा रहते हैं या ऑफ रोड पे ज़्यादा रहते हैं। इन माई एक्सपीरियंस 80% ऑफ माई बाइक्स हैव बीन ऑन रोड। ऑफ रोड एक थोड़ी लिमिट के लिए होता है, और मेरी एवरेज स्पीड भी अगर बड़ी बाइक्स के साथ लगा के रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 120-150, उससे ज़्यादा की स्पीड मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडियन रोड सर्फेसिस पे मैनेजेबल है, सस्टेनेबल है। मतलब आप एक बार को बहुत तेज़ चला के वापस आ जाओगे वापस, बट 120 to 150 इज़ लाइक अ कंफर्टेबल रीजनल जोन, and on that kilometer range this bike performs really well, gives you a nice premium average। तो और एक और पहलू जो ये है कि वो एक थोड़ा सब कुछ आपको मिल जाता है। थोड़ा कैनियन कार्विंग, थोड़ा टूरिंग, थोड़ा संडे राइड, थोड़ा स्पीड, थोड़ा प्रीमियमनेस, तो थोड़ा सब कुछ है। तो एक ऐसे राइडर को जो मैच्योर्ड है और जो समझता है कि ये बाइक की लिमिट क्या है और मेरी लिमिट क्या है, उस बाइकर को, उस पर्सन को ये बहुत जो है संतुष्टि देने वाली बाइक होगी और बहुत हैसल फ्री बाइक होगी। मेंटेनेंस भी कम है इसकी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी संतुष्टि कहाँ है। यू नो वेयर डू यू वांट टू पुट अ स्टॉप ऑन योर चार्ट कि हाँ यार आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस रेंज ऑफ पावर, दिस रेंज ऑफ मनी एंड दिस रेंज ऑफ मेंटेनेंस एंड दिस रेंज ऑफ बाइक और द लुक्स ऑफ द बाइक। दैट इज़ अगेन अ सब्जेक्टिव थिंग। तो इस बात पे कहावत याद आ जाती है मुझे, अंग्रेज़ी कहावत है कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट एंड सेटिस्फैक्शन ब्रिंग्स इट बैक। तो इन दी एंड मैं यही बोलूँगा कि इट डिपेंड्स ऑन योर सेटिस्फैक्शन लेवल्स एंड योर संतुष्टि लेवल्स कि कौन सी बाइक आपको अपील करेगी। क्योंकि मार्केट में इस रेंज में अब बहुत सारी बाइक्स हैं, बट एक ऑलराउंडर होना और सब कुछ करना ये बहुत सारी बाइक्स के बस की बात नहीं है, बट ये वो कर पाती है। एंड ऑन दिस satisfactory self-santushti sort of a note, this is a couple of rides signing off. Bye.
कुछ दिन पहले मैंने एक हुड वर्सेस वाइज़र वाला वीडियो किया था, जिसका लिंक मैं इधर कहीं डाल दूंगा या नहीं डालूंगा, बट हाँ उस पर एक कॉन्टेस्ट रन किया गया था कि मैक्सिमम कमेंट्स और मैक्सिमम लाइक्स वाला जो बंदा है उस वीडियो पे, उसको मैं ये वाइज़र फ्री में दे दूंगा. सो इन माय humble opinion and humble calculations, Mr. Jayasuriya S has the maximum number of likes and some comments, and I think out of the two people, which is Mr. Jayasuriya and Mr. Sachin Shukla, Mr. Jayasuriya S wins the match, and he can connect with me on any of my videos and let me know his address and his mailing address and stuff, so that I can mail it to him as per his desired address. So here is with this we close this contest in about whatever time I could. So congratulations Mr. Jayasuriya, if I'm pronouncing it right, don't mind it, but let me know on the video, and please let me know the address, and so that I can mail it and do the necessary completions for the contest. Thank you so much, and stay tuned for more stuff like this. Bye.